سامعین محترم، وقت کی بے رحم موجیں ہمیں بہائے لیے جا رہی ہیں۔ دنیا کی رنگینیاں آنکھوں کو خیرہ کر چکی ہیں اور نفس کی شور و غل نے روح کی دبی دبی پکار کو خاموش کر دیا ہے۔ ایسے میں جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ جلوہ گر ہوتا ہے تو وہ اپنے دامن میں ایک ایسی متاع بے بہا لاتا ہے جسے اہل دل اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کیا ہے؟ اعتکاف تو خالق کائنات کی چوکھٹ پر جبین نیاز جھکانے کا نام ہے۔ یہ اس ہمہ ہمی کی دنیا سے ناتا توڑ کر اپنے اللہ سے ناتا جوڑنے کا نام ہے۔ بقول شاعر، فراغت سے اب تو فرصت مل گئی ہے، تیری یادوں کی محفل مل گئی ہے۔ حضرات گرامی، اعتکاف کا لغوی مفہوم ہے رک جانا، تھم جانا یا کسی چیز کو لازم پکڑ لینا۔ ذرا سوچئے، ہم زندگی بھر دوڑتے رہے، کبھی رزق کے پیچھے، کبھی جاہ و حشمت کے پیچھے، مگر اعتکاف ہمیں پکار کر کہتا ہے ٹھہر جاؤ، تھوڑا سانس لو، اپنی اصل کو پہچانو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں بندہ دنیا سے دست بردار ہو کر اپنے رب کا دستے نگر بن جاتا ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، مگر یاد رکھیے اعتکاف تو وہ سفینہ ہے جو گناہوں کے سمندر میں غوطے کھاتی ہوئی روح کو ساحل نجات تک پہنچا دیتا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب، کیا تسبیح بازار میں نہیں گھوم سکتی؟ کیا ذکر گھر میں نہیں ہو سکتا؟ سچ تو یہ ہے کہ پانی کی مچھلی جب تک پانی میں رہتی ہے زندہ رہتی ہے، باہر نکلے تو تڑپنے لگتی ہے۔ مومن کا سکون تو اللہ کے گھر میں ہے۔ جس طرح لوہے کو کندن بنانے کے لیے بھٹی کی تپش چاہیے، اسی طرح روح کو سیقل کرنے کے لیے اعتکاف کی خلوت درکار ہے۔ ضرب المثل ہے کہ لوہا لوہے کو کاٹتا ہے، بالکل اسی طرح اعتکاف کی یہ بابرکت تنہائی دنیا کی تنہائی کے خوف کو جڑ سے کاٹ دیتی ہے۔ جب انسان اللہ کے ساتھ تنہا ہونا سیکھ لیتا ہے تو اسے پھر قبر کی اندھیری تنہائی ڈرا نہیں سکتی۔ ہمارے پاس سب سے بڑی دلیل اور سب سے روشن نمونہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی زندگی میں کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، یہاں تک کہ وصال والے سال 20 دن نے اعتکاف فرمایا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عبادت کوئی عام رسم نہیں، بلکہ یہ شب قدر کے گوہر نایاب کو تلاش کرنے کی ایک روحانی مہم ہے۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اعتکاف وہ جام محبت ہے جسے پینے کے بعد انسان کی کایا پلٹ جاتی ہے۔ یہ وقت گزاری نہیں بلکہ وقت کی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ ہمیں مورتیوں کی طرح بے جان ہو کر نہیں بیٹھنا، بلکہ موتیوں کی طرح آب و تاب پیدا کرنی ہے، تاکہ جب عید کا چاند نظر آئے تو ہماری پیشانیوں پر وہ نور ہو جو صرف رحمان کے سجدوں سے کشید کیا جاتا ہے۔ آئیے اس عزم کے ساتھ اس سفر کا آغاز کریں کہ ہم نے مسجد کی ان دیواروں میں صرف اپنا جسم نہیں رکھنا، بلکہ اپنا ٹوٹا ہوا دل بھی اپنے مالک کے سپرد کر دینا ہے۔ میرے عزیز دوستو، جب مسافر کسی طویل سفر پر نکلتا ہے تو وہ اپنا زاد راہ پہلے ہی تیار کر لیتا ہے۔ اعتکاف بھی تو ایک سفر ہے، مگر یہ سفر زمین کا نہیں، یہ سفر آسمان کی سمت ہے۔ یہ مٹی کے پتلوں کا اپنے خالق حقیقی کی طرف ہجرت کرنے کا نام ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلے تولو پھر بولو، مگر اعتکاف کی تیاری میں ہم کہتے ہیں پہلے تولو پھر تولو، یعنی پہلے اپنے ارادوں کو اخلاص کی ترازو میں تولو اور پھر اس پاکیزہ سفر پر قدم رکھو۔ اعتکاف کی پہلی شرط نیت ہے، اور یاد رکھیے نیت صاف، منزل آسان۔ اگر دل میں دنیا کی واہ واہ یا لوگوں کو دکھانا مقصود ہے تو پھر یہ اعتکاف نہیں بلکہ ایک قید ہے، لیکن اگر نیت میں صرف رضائے الہی ہے تو پھر مسجد کا ہر لمحہ رحمتوں کا سمندر ہے۔ بقول شاعر، تیری چوکھٹ پہ جو سر جھک گیا ہے وہیں آ کر مرا دل رک گیا ہے۔ حضرات گرامی، اعتکاف کے لیے پاکیزگی کا ہونا لازمی ہے۔ جس طرح میلا کپڑا اجلے رنگ کو قبول نہیں کرتا، اسی طرح میلا دل انوار الہی کو جذب نہیں کر سکتا۔ مسجد کا انتخاب کرتے وقت سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھیں۔ مردوں کے لیے وہ مسجد جہاں باجماعت نماز کا اہتمام ہو، اور خواتین کے لیے ان کے گھر کا وہ گوشہ جو انہوں نے نماز کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یاد رکھیے اعتکاف میں بیٹھنے والا بادشاہ کا مہمان ہوتا ہے،
और मेहमान को जेब नहीं देता कि वो मेजबान के घर में रहकर उसकी नाफरमानी करे। ज़रबुल मिस्ल है कि जैसा देश वैसा भेस। तो जब आप अल्लाह के घर में हो तो आपका जाहिर और बातिन भी अल्लाह वालों जैसा होना चाहिए। फजूल गुफ्तगू से परहेज करें, मोबाइल फोन के फितनों से दामन बचाएं। आज का अलमिया यह है कि हम मस्जिद में तो बैठ जाते हैं मगर हमारा दिल बाजारों में भटक रहा होता है। यह तो वही बात हुई कि हाथ तस्बीह, दिल में फसाद। एतिकाफ के दौरान जरूरी आजार का मसला भी समझना जरूरी है। जिस तरह प्यासा कुएं के पास जाता है वैसे ही वुजू, गुस्ले जनाबत या खाने पीने के लिए मस्जिद से निकलना जायज है, मगर बिला जरूरत एक कदम भी बाहर निकालना एतिकाफ के शीशे को चिकनाचूर कर देता है। साहिबो, एतिकाफ में खामोशी को अपना ओढ़ना बिछोना बनाएं, लेकिन ऐसी खामोशी नहीं जो बोझ हो, बल्कि वो खामोशी जिसमें जिक्र इलाही की खुशबू रची हो। किसी दाना ने सच कहा है कि खामोशी में जो नगमा है वो साजों में नहीं होता। जब जुबान खामोश होती है तो दिल बोलने लगता है, और जब दिल बोलता है तो अर्शे इलाही से रहमतों की बारिश होने लगती है। दलील काते ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स ईमान और एहतिसाब के साथ एतिकाफ करता है उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह, कितना बड़ा सौदा है। हींग लगे न फटकरी और रंग भी चोखा आए। थोड़ी सी मशक्कत, थोड़ी सी यकसुई और बदले में अबदी मग़फ़िरत। आइए इस बार हम एतिकाफ की तैयारी ऐसे करें कि दुनिया देखे या न देखे अर्शे वाला मुस्कुरा दे। हमें रस्म शब्बीरी तो याद है, मगर फिक्र शब्बीरी को भी जिंदा करना है। मेरे मोहतरम सामईन, जब बंदा एतिकाफ की नीयत करके मस्जिद की हुदूद में पहला कदम रखता है तो गोया वो दश्ते दुनिया की झुलसा देने वाली धूप से निकलकर सायाए अर्श के नीचे पनाह ले लेता है। अब उसकी हर सांस एक तस्बीह है, उसकी हर खामोशी एक इल्तिजा है, और उसका सोना भी ऐन बंदगी है। साहबो, एतिकाफ सिर्फ वक्त गुजारने का नाम नहीं, बल्कि वक्त को अम्र करने का नाम है। किसी दाना ने सच कहा है कि जो लम्हा याद इलाही में गुजर जाए वही जिंदगी है, बाकी सब तो सांसों का ज़यां है। इस रूहानी सफर में मोतकिफ के मामूलात कैसे होने चाहिए? ज़रबुल मिस्ल है कि जैसा बर्तन होगा वैसा ही उससे छलकेगा। अगर हमारा दिल अल्लाह की मोहब्बत से लबरेज होगा तो हमारी तन्हाई भी एक पुरकैफ अंजुमन बन जाएगी। एतिकाफ में कुरान का पढ़ना ऐसा है जैसे तपती रूह पर अब्रे रहमत का बरसना। ये वो कलाम है जो मुर्दा दिलों में जिंदगी की रमक पैदा कर देता है। कुरान को सिर्फ जबान से न पढ़ें, बल्कि इसे अपने वजूद के रेशे रेशे में उतरता हुआ महसूस करें। बकौल शायर, तरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिराह कुशा न है राजी न साहिबे कशाफ। याद रखिए, जब बंदा कुरान पढ़ता है तो वो अपने खालिक से हम कलाम होता है, और जब सजदे में गिरता है तो गोया वो रब के कदमों में होता है। एतिकाफ की खलवत का तकाजा है कि जुबान पर ताला और दिल में उजाला हो। फजूल गुफ्तगू से किनारा कशी इख्तियार करें, क्योंकि ज्यादा बोलना मारिफत के चिराग को गुल कर देता है। मुहावरा है कि खामोशी सोना है, मगर एतिकाफ की खामोशी तो वो कीमियाए सादत है जो लोहे जैसे सख्त दिल को कुंदन बना देती है। अपनी जबान को दरूद पाक की खुशबू से मुअत्तर रखें और इस्तग़फ़ार की तस्बीह को हिर्ज़े जां बना लें, क्योंकि नदामत के चिरागों से बदल जाती हैं तकदीरें, अंधेरे दूर होते हैं, चमकती हैं तदबीरें। इन मुबारक अय्याम का असल मकसूद वो रात है जो 1000 महीनों की इबादत से अफजल है। शब कदर की तलाश में ऐसे मगन हो जाएं जैसे कोई प्यासा सहरा में आबे हयात तलाश करता है। ज़रबुल मिस्ल है कि जो जागता है वही पाता है। इन ताक रातों में अपनी नींद को रब की रजा पर कुर्बान कर दें। जब दुनिया हफलत की चादर ताने सो रही हो, तब आप अपने मालिक के सामने दामन फैलाए आंखों में आंसू लिए खड़े हों। हजरात गरामी, हमें मस्जिद में मूर्ति की तरह बेहिस होकर नहीं बैठना, बल्कि मोती की तरह आबोताब पैदा करनी है। हमारा हाल ऐसा हो कि हर धड़कन पुकार उठे, या अल्लाह, मैं तेरा गुनहगार बंदा हूं, मगर तेरे दर के सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं। दलील काते ये है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के करीब होता हूं। सुभान अल्लाह, जितना बड़ा हमारा गुमान होगा उतनी ही बड़ी उसकी अता होगी। ये सौदा महंगा नहीं है साहब, हींग लगे न फिटकड़ी और रंग भी चोखा आए, यानी बस चंद दिन की यकसुई
चंद रातों का जागना और बदले में अबदी कामयाबी और मग़फ़िरत का परवाना। आइए इस अज़्म के साथ इन लम्हात को समेटें कि जब हम इस एतकाफ़ से बाहर निकलें तो हम महज इंसान ना हो बल्कि नूरे बंदगी से मुनव्वर एक नई शख्सियत बन चुके हों। मेरे मोहतरम साथियों, वक्त की रेत हाथों से फिसल रही है और घड़ी की सुइयां पुकार पुकार कर कह रही हैं कि वो लम्हा आन पहुंचा है जब एतिकाफ की ये नूरानी अय्याम अपनी बिसात लपेट रहे हैं। मस्जिद के ये खामोश दरो दीवार गवाह हैं कि आपने यहाँ अपने रब को पुकारा, आपके सजदों ने फर्शे जमीन को चमकाया और आपकी नीम शबी आंखों ने अर्शे बरी के कंगूरों को हिला दिया। अब जब के रुखसत की घड़ी सर पर है तो दिल बोझल है और आंखें पुरनम हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, उजड़ गया है कि फिर बस गया है दिल मेरा, वो जा रहा है कि दिल से नहीं निकल रहा। हजराते गरामी, एहतिकाफ का ख़त्म होना दरअसल आपके रूहानी सफ़र का इख्तिताम नहीं बल्कि आपके किरदार के इम्तिहान का आगाज़ है। ज़रबुल मिसल है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। खबरदार, कहीं ऐसा न हो कि हम 10 दिन की रियाजत को मस्जिद से बाहर निकलते ही दुनिया के हंगामों की नज़र कर दें। याद रखिए, सोना वही है जो कसौटी पर पूरा उतरे। अगर एतिकाफ से निकलने के बाद भी हमारी ज़बान में वही तलखी और हमारे मुआमिलात में वही खोट रहा तो फिर साहब हमने गोशा नशीनी तो की मगर मकसूद एतिकाफ हासिल न कर सके। हमें तो ऐसा बनना है कि जिसकी खुशबू से ज़माना महक उठे। बकौल शायर, फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादान पर कलाम नर्मो नाजिक बेअसर। साहिबो, अब वो मुबारक साहत आने वाली है जिसे आसमानों पर लैलतुल जायजा यानी इनाम की रात पुकारा जाता है। ईद का हिलाल नजर आते ही अल्लाह ताला अपने उन मुसाफिरों की तरफ मुतवज्जे होता है जिन्होंने एतिकाफ की तन्हाइयों में सिर्फ उसे पुकारा। मुहावरा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो। जरा तसव्वुर कीजिए, वो रब्बे जुल जलाल जो सबसे बड़ा सखी है, वो अपने उन मोतकिफीन को कितनी अजीम मजदूरी अता फरमाएगा जिन्होंने उसकी खातिर अपनी नींदों को सूली पर चढ़ाया। दलील काते ये है कि जब ईद की सुबह होती है तो फरिश्ते आसमानों से जमीन पर उतर आते हैं और पुकारते हैं, ए उम्मते मुहम्मदिया के लोगो, उस करीम रब की चौखट पर चलो जो जर्रे को आफताब और कतरे को समंदर बना देता है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस वीडियो का मकसद महज मालूमात का अंबार लगाना नहीं था बल्कि आपके बंजर दिलों में इश्क़ इलाही की एक शमा रोशन करना था। अगर इस बयानिए ने आपके दिल की तार को छेड़ा है तो इसे अमानत समझकर दूसरों तक पहुंचाएं। ज़रबुल मिसल है कि चराग से चराग जलता है। आपका एक शेर किसी भटकी हुई रूह को दोबारा उसके मरकज से जोड़ सकता है।